And breaking news coming in, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has hit out at the centre, calling the entire push to reform the Waqf Act as an RSS agenda to finish the Waqf boards. The government wants to interfere in the Waqf boards across the country. Is the pitch coming in from the AIMIM chief? Let's listen in. दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। प्रपोज अमेंडमेंट से जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। And I'm joined by my colleague Payal Mehta on the broadcast, who's been tracking all the developments in the wake of this big announcement coming in from the centre when it comes to reforming the Waqf Act. So Payal, while clearly this will be very politically charged, where various opposition parties have also drawn the line in the sand, but when it comes to reforming this contentious act, are there voices also coming in from the Muslim camp? Are top Muslim voices also saying that reform is the need of the hour? Well, you know, the shape that the government is trying to give to this is this, Ayushman, that there is need for reforms and, lessening the powers of the Waqf board, because they can't capture any property and claim then to be to the legal owners or the right owners for that as well. Because there are properties which date back, probably to the pre-independence or post-independence period, which actually, if anybody has to claim their right, they'll have to go to court as well. So obviously, this overarching power of the Waqf board cannot really be allowed, because they are in possession of properties worth crores and crores of rupees, is what we're given to understand. Secondly, as far as the reforms are concerned in the wake of this Waqf Board Act, you do understand that in the Central Waqf Board and in the State Waqf Board, we have 30 of them. There is hardly any representation for women as well. So the government is saying that even though there have been allegations being thrown at the government saying that they've been anti-Muslim as well, but they've been constantly speaking about, the availability of gender justice for women. So the intention and one of the contentious clauses in this act, which is going to be reformed, is to in fact give work responsibility to women as well. So that's something which has been spoken about. But yes, the Muslim clerics, like you mentioned, even Mr. Owaisi saying that this is trampling upon the rights of the Muslims. It will be a big issue to watch out for when the bill gets introduced sometime this week in Parliament, Ayushman. Right. Thank you, Payal, for getting us the latest. So it will be a politically contentious matter between the NDA government as well as the opposition. Let's listen into more reactions coming in. बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी, नहीं तो और भी ज़्यादा बिल, इससे सख्त बिल हमारे खिलाफ आ सकते हैं। सर, आप ये खबर पढ़ी होगी कि सरकार इस हफ्ते बिल ला सकती है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें कई संशोधन किए जाने की बात चल रही है। इस पर क्या कहना है आपका? मेरा तो ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये तो एक अलग, अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में, भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए। उसकी पूरी तरह से उसकी सीमा ख़त्म की जानी चाहिए, उसकी अधिकार ख़त्म की जानी चाहिए।
और उसकी मान्यता ख़त्म की जानी चाहिए। सर कई इसमें संशोधन हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में जो प्रस्तावित हैं संपत्तियों पर दावा करना, वक्फ बोर्ड के गठन जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं जो इस संशोधन में सामने आ सकते हैं। भाई जो पहले की सरकारें थी कांग्रेस और तमाम, उन्होंने वक्फ बोर्ड को एक भस्मासुर बना दिया, जिस पे हाथ जिस जमीन पे रख दे उन्हीं का है। और वो भस्मासुर ऐसा हो गया कि वो हमारे मंदिरों तक के, प्राचीन मंदिरों तक के जो 2500 वर्षों तक के आश्रम है, मंदिर है, उस पर दावा कर देती है कि मेरा है और उसका कहीं कोर्ट में केस नहीं चलता। तो यह एक जो पिछली सरकारें थी कहीं ना कहीं अपने ही देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो ठीक नहीं है। सेंट्रल हुकूमत एक मरकजी वक्फ बिल लेकर के आना चाह रही है, उसका मुसव्वदा तैयार हो गया है और वो 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजरें उस कानून पर टिकी हुई हैं कि उसमें क्या होगा। अगर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं इनका सही रखरखाव किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो सकती है। कोई भी मुसलमान बस में, ट्रेन में, रोड पे भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। Central government has proposed amendments in the Waqf Act, and basically it has said that we'll verify all the claims that has Waqf made on its properties. How do you see that? A news report has come. Let us see what finally comes before Parliament or in any other legal manner that is envisaged under the Constitution. In any case, with any law, it does not have to be only the Waqf law, any law, if there are reports about the law being misused, if there are reports that the intended objectives are not being met, if there are reports that there can be improvements, that is part of the process of rule of law, that you keep on bringing amendments, changes that would apply generally to anything and everything. So I don't know why it's being politicized. It cannot be seen through a prism of religion. After all, legal rights flow from an act. If that act has certain shortcomings or if there is scope for improvement or modification, that is the part of the evolution of society based on the experience that the intended act way back maybe 30, 40, 50, 60 years ago had and what is today's ground reality. So I would not look at it as a political issue, but we have to wait till finally we know what are the exact changes, if any, whether they are being proposed or not. Let that all come out, then one can give a substantive comment. चर्चा ये चल रही है कि वक्फ बोर्ड में ऐसे 40 संशोधन किए जाने हैं जिसको लेकर सरकार एक बिल ला सकती है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है सर? देखिए, समाजवादी पार्टी तो संविधान बचाने की बात करती है और समाज को सम्मान देने की बात करती है, सारे समाजों को, जो देश में सब समाज मिलकर एक हमारे भारत बनता है, हिंदुस्तान बनता है। वक़्फ़ जो एक लॉ है, वक़्फ़ जो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये दुनिया भर के मुल्कों में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबाद बसे हुए हैं वहाँ पर वक्फ संपत्तियाँ भी हैं। वक्फ संपत्तियाँ उनको कहा जाता है कि कोई शख्स अपने मज़हब के लिए, अपने सवाब के लिए या मानवता के लिए, समाज के अच्छे कामों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, कमज़ोरों के लिए कोई चीज़ दान कर दे और उसका कस्टोडियन सरकार को कहे कि साहब आप मेरे जाने के बाद भी इसकी देखरेख करिएगा। तो इसलिए सबसे पहला इस्लामिक लॉ जो है, मतलब वक्फ के ताल्लुक से, वो ये है, अल वक्फ़ु ला यमलिक वला युमलक। वक्फ का ना कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। पब्लिक ये समझती है कि वोट फॉर डेमोक्रेसी जो एनजीओ ने कहा है कि 79 सीटें जो हैं हमने वोट परसेंटेज के ज़रिए से हासिल की हैं, जिसको एक्स इलेक्शन कमिश्नर वाहिद कुरैशी ने भी उस पर एतराज़ किया कि हाँ, इससे इलेक्शन कमीशन के वक़ार, उसकी मर्यादा पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन चीज़ों से जहन डाइवर्ट करने के लिए ये वक़्फ़ और मुस्लिम के इशूज़ को उठा रहे हैं।